Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2, subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to discuss about the second part of the parathormone, calcitonin and vitamin D. In this lecture, we can elaborate about the vitamin D and the bisphosphonate drugs, which are very commonly used for the osteoporosis and other associated bone diseases. So, let us start with the learning objectives. In the end of this lecture, you people will be able to understand the biosynthesis, storage and the physiological role of the vitamin D. You people will be able to explore the therapeutic implication of vitamin D and bisphosphonates, whereas you people will also be able to analyze the treatment protocol for the osteoporosis like bisphosphonates. So, let us start with the vitamin D. What is vitamin D? So, vitamin D is basically a prohormone which can convert into the hormone like calciferol and calcidiol or ergocalciferol. Okay. Now, vitamin D is the terminology which is commonly associated with anti-rachitic substances. Now, what are these substances? These are the substances which are found in food and need some radiation for the activation of those particular active components like UV rays or UV B rays. Okay. So, generally vitamin D is classified into three different parts, D1, D2 and D3. So, here D3 is also known as cholecalciferol. It is basically synthesized in the skin under the influence of UV radiation. UV में भी दो तरह के रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन A and रेडिएशन B. So, here radiation B is required for the conversion of cholesterol or dehydrocholesterol available in the skin into the cholecalciferol. The second one is the D2. D2 is the vitamin which is also known as calciferol. Sometimes people also call this D2 as a ergocalciferol because it is available in the food, especially food which is taken from or prepared from the fungus or yeast or bread milk. So, ergocalciferol because fungus have the basic component for their cell membrane that is the ergosterol. तो वहाँ से बनता है. And the last one is the D1 which is an historic or you can say obsolete vitamin which is not commonly seen for any clinical or the physiological action. It is the mixture of the anti-rachitic substances in the फूड. तो यानी कि ये विटामिन D1 जो है वो फूड में मिक्सचर है एंटी रैचेटिक सब्सटेंसेस का. नाउ लेट्स मूव टू द बायोसिंथेसिस ऑफ द एंड एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी. अब इसके एक्टिवेशन या इसके बायोसिंथेसिस में दो अलग अलग पाथवे हैं. सो अगर हम विटामिन D2 बना रहे हैं तो इसको बनाते वक्त हमें आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, हमने खाना खाया, खाने में हमें मिला अर्गोस्टिरॉल. ये अर्गोस्टिरॉल जो है दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अर्गोकैल्सिफेरॉल. और फिर ये अर्गोकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हुआ 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल और फिर ये जाके कन्वर्ट हुआ 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल. ना. तो यानी 125 and 25 is the active form of the you can say vitamin D2. दूसरा जो पाथवे है that starts with the food dehydrocholesterol which is available under the skin. dehydrocholesterol से बनता है ये under the effect of UV radiation B. ये प्रिपेयर होता है और ये बनाता है cholecalciferol. This cholecalciferol will again converted into 25 hydroxy cholecalciferol and this will again converted into 125 dihydroxy cholecalciferol. DOH3 कह देते हैं इसको. तो DOH3 बन गया. Now this is known as D3. Active form is known as what? Calcitriol. Now अब
आप ये चीज़ समझ लेंगे कि हमारे को D2 बनाने के लिए चाहिए डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विच इज़ द सिंथेटिक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द D3 सिंथेसिस। यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में बनेगा, ये कन्वर्ट होगा कॉलीकैल्सिफेरॉल में, फिर दोबारा ये कन्वर्ट हुआ 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड लेटर इट विल कन्वर्ट इन द 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3 ऑल्सो नोन एज कैल्सिट्रायोल। अगर हम बात कर लेंगे D2 की, तो ये हमें फूड से मिलेगा, उसमें हमको एर्गोस्टिरॉल मिलेगा, एर्गोस्टिरॉल कन्वर्ट होगा और एर्गोकैल्सिफेरॉल में, एर्गोकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट होगा 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल एंड फिर it will later convert into the 125 dihydroxy cholecalciferol which is also known as ergocalciferol and it is the active form of the D2. So, this is the synthetic pathway which is very required for the physiological function in the body. ठीक है. Now, what are the physiological functions which is mediated by the vitamin D, either it is D2 or D3. So, generally कैल्सिट्रायोल विच इज ऑल्सो नोन एज D3, ठीक है, याद रखना D3 को हम यहाँ कैल्सिट्रायोल कह रहे हैं और D2 को हम यहाँ क्या कह रहे थे हम इसको एर्गोकैल्सिफेरॉल या फिर कैल्सिफेरॉल, ठीक है, ओके। चलो, तो कैल्सिट्रायोल जनरली इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड द फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। इन लास्ट लेक्चर वी एलोबरेट दैट द कैल्सिटोनिन एंड द पैराथॉर्मोन रिक्वायर्स द विटामिन डी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन और द किडनी, ठीक है ना। नाउ दिस पर्टिकुलर mechanism was supported by the calcium channel and this calcium channel is processed by a protein or you can say carrier protein which is known as calbindin, ठीक है। तो यानी कि अब कैल्सिट्रायोल कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, बट उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का मतलब है कि उसका मूवमेंट भी होगा इधर उधर कैल्शियम का, और दैट मूवमेंट इज सपोर्टेड बाय अ प्रोटीन विच इज नोन एज कैलबाइंडिन। ये कैलबाइंडिन जो है वो मेम्ब्रेन के इधर उधर कैल्शियम को इनफ्लक्स या इफ्लक्स करता है, ठीक है ना। व्हाट इट कैन डू, इट कैन बाइंड्स विद द साइटोप्लाज्मिक विटामिन डी रिसेप्टर एंड लेटर ऑन दिस बाइंडिंग विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द mRNA and this mRNA activation will lead to the इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आपको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कैल्सिट्रायोल विल आल्सो एनहांस द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम द बोन, ठीक है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैल्सिट्रायोल, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो कैल्सिट्रायोल एनहांसेस द, यानी इट विल यू कैन से डिग्रेड द बोन एंड इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है, यानी पैराथॉर्मोन का सपोर्टिव हार्मोन है ये, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है, ये उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। हाँ, कैल्सिट्रायोल ऑल्सो एनहांसेज और इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द किडनी. This is also a supportive role for the parathormone. It means it increases the calcium concentration in the blood. Now, what type of pathological conditions are associated with the excessive or low amount of the vitamin D? So, generally if a person is suffering from vitamin D deficiency, generally vitamin D deficiency is commonly seen. Hypervitaminosis D is very rare issue, but let us start with the hypovitaminosis D or लैक ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी. तो सबसे पहले जो सिम्टम आएगा दैट इज द मूड चेंज. आपका मूड स्विंग बहुत जल्दी होने लगेगा. दिस इज द फर्स्ट सिम्टम और ये इंडिकेट करेगा कि यू हैव द लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो रहा है ब्लड में, ठीक है, और कैल्शियम का लेवल जब कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ऑल्सो एंड सम हार्मोन्स रिलीज ऑल्सो, एंड दोज न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन विल लीड टू द मेंटेनेंस ऑफ व्हाट मूड सच एज सेरोटोनिन, ठीक है ना. तो ये मूड चेंजेस आपको देखने को मिलेगा. दूसरा प्रॉब्लम जो है बोन लॉस होने लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट विटामिन डी इज अ ऑस्टियोपोरोटिक हार्मोन, ठीक है, इट कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस. तो बोन लॉस होने लगा आपको. तीसरा मसल क्रैम्प होने लगा. अब भाई मसल क्रैम्प क्यों हो रहा है, तो मसल क्रैम्प होने के पीछे जो रीजन है दैट इज व्हाट, द लैक ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना. आपके बॉडी में जब कैल्शियम कम हुआ, विटामिन डी नहीं है,
तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसकी वजह से आपके बॉडी में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होगा एंड लैक ऑफ द कैल्शियम इन द बॉडी विल लीड टू द मस्कुलर क्रैम्प्स, ठीक है। बोन एंड जॉइंट पेन, दिस इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द कैल्शियम, ठीक है। एंड फैटिगनेस is also associated with the low level of calcium in the body because it controls our nervous system, ठीक है। Okay, so what is the hypervitaminosis D? In last slide we discuss about the hypovitaminosis D या विटामिन डी डेफिशिएंसी, बट यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आ गई कि भैया ये हाइपरविटामिनोसिस डी क्या है, यानी कि कभी विटामिन के एक्सेसिव कंसंट्रेशन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी बिल्कुल हो सकता है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है? जनरली जब हम ज़्यादा विटामिन डी कंज्यूम कर लेते हैं या फिर हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेने लगते हैं तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। Due to the chronic ingestion of the large doses of vitamin D, and it will around 50,000 of the international unit for one day, ठीक है। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है विटामिन डी की टुवर्ड्स द टिश्यू। मैनिफेस्टेशंस अगर हम बात करें, व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस और द सिम्टम्स ऑफ दिस हाइपरविटामिनोसिस डी, तो जनरली पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा विटामिन तो इसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम, ठीक है, याद रखना। वीकनेस होने लगेगा, फैटिगनेस देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, हाइपर पैरास्टाल्टिक मूवमेंट जिसकी वजह से डायरिया होने लगेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा, रीनल स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे। तो दीज ऑल सिम्टम्स आर यू कैन से आर कोरिलेटिंग विद द हाइपरकैल्सीमिया बिकॉज दे ऑल कैल्शियम इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड ऑल द excessive calcium, not the calcium, excessive calcium is the main culprit behind this hypervitaminosis D. Now what is the treatment protocol for this? What drugs or what supplements we can use for the treatment of hypervitaminosis D? So generally what we can do, we can take the diet which having a low calcium level, या हम वो खाना खाएंगे जिसमें कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करना है, और कभी कभी अगर कंडीशन आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ रही है तो फॉर दैट वी कैन ऑल्सो टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड बट अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट, ठीक है, अपने मन से नहीं। नाउ व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स? वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। विटामिन डी जनरली इट बाइंड्स विद द बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा ग्लोबुलिन, हाँ, और ये कहाँ पर पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू पे, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा विटामिन डी के साथ और एडिपोज टिश्यू में उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू इसका कन्वर्जन होता है, यानी कि इसका जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है, आपने देखा होगा जब मैंने कन्वर्जन कर रहा था, अर्गोकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट हो रहा था अर्गोकैल्सिफेरॉल में, तो यानी हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो इसको एक्टिव बनाता है और डीहाइड्रोक्सिलेशन इसको इनएक्टिव बना देता है, ठीक है। हाफ लाइफ इज अराउंड 1 to 18 days. इट मीन्स वंस यू एडमिनिस्टर विटामिन डी तो इट विल रिसाइड इन योर बॉडी अप टू 18 days, ठीक है। द highest or you can say the longest duration of half life is 18 days, that is for 25 hydroxy D3, that is cholecalciferol, hydroxy cholecalciferol, ठीक है। मेटाबोलाइट्स जनरली बाइल के थ्रू बाहर निकलते हैं ये, ठीक है। यूरिन इज नॉट द excretory part, excretory system for the vitamin D. Now what are the preparations which are available in the market? So generally 1 microgram of cholecalciferol is equivalent to the 90 international unit of vitamin D, ठीक है। What daily requirement is that totally depend on the exposure to the sunlight. If you are in the winter, you need to expose yourself for a longer duration of action, longer duration of time, ठीक है ना, हाँ। और अगर आप गर्मियों में हैं तो आप थोड़े से टाइम के लिए भी आप अगर धूप में रहते हैं तो दैट विल मेंटेन द विटामिन डी इन योर cholecalciferol इन योर बॉडी, ठीक है। बट ये जो धूप लेने का जो हमें धूप मतलब एक्सपोज होना है, दैट विल बी अराउंड बिफोर 8 AM सॉरी, हाँ, मतलब मॉर्निंग में 8 o'clock के पहले ही आपको धूप ले लेना है। उसके बाद फिर जो रेडिएशंस होते हैं दे आर मच मोर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक कंपेयर टू द 8 AM, हाँ, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ नो विटामिन D3 is synthesized in the body, the dietary allowance will maintain that concentration. And what is the dietary allowance? It is around 400 international unit per day, that will maintain the cholecalciferol level in the body. Sometime it will be around 1000 international unit
स्पेशली इन द पीपल हु हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। कॉली अर्गो कैल्सीफेरॉल विच इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल और विटामिन D2, ये मार्केट में आता है ऑयल के फॉर्मुलेशन में या फिर जेलेटिन कैप्सूल्स के फॉर्मुलेशन में, और जो उसके कैप्सूल्स आते हैं दैट इज कंटेनिंग द 25,000 ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D2 और अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड 50,000 ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है ना। कॉली कैल्सीफेरॉल जो है जनरली ये ओरली एडमिनिस्टर करने के लिए आता है मार्केट में, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आता है। Oily preparation is also available in the market for the intramuscular injection and it is generally suspended in the milk and water and taken at 3 to 4 weeks interval and afterward every 2 to 6 months of interval, ठीक है। Now what are the uses of the vitamin D? So generally जाहिर सी बात है, मैंने बता दिया आपको कि हाइपोविटामिनोसिस की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस और वो सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, और हाइपर विटामिनोसिस की वजह से आपको हाइपर कैल्सीमिया या फिर वीकनेस, मसल क्रैम्प्स ये देखने को, मसल फैटिगनेस देखने को मिल रहा था। सो अगर आप प्रोफाइलेक्सिस पर्पज से देख रहे हो तो यू कैन गो विद द 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, एंड इफ यू आर ट्रीटिंग द हाइपोविटामिनोसिस ऑफ विटामिनोसिस डी या विटामिन डी डेफिशिएंसी, सो यू हैव टू ऑप्ट फॉर द 3,000 to 4,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी पर डे। मेटाबोलाइट रिकेट्स को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये रिकेट्स जो है ये बच्चों में देखा जाता है और विटामिन डी की कमी की वजह से ज़्यादा होता है। नाउ पोस्ट इम्यूनोपॉसल ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसका यूज़ जो है वो बहुत इफेक्टिव है। ये स्पेशली उन वुमेन्स में होता है हु आर मोर देन ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, एंड वे आर वेरी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द हिप फ्रैक्चर, ठीक है ना। अगर उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने लग गया तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू द हिप फ्रैक्चर। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फैंकोनी सिंड्रोम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सर्टेन अमीनो एसिड्स बीइंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है ना। तो फैंकोनी सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है, ये फॉस्फेट के लेवल को कम करता है, मेंटेन करता है, ठीक है ना। नाउ अब हम बात कर लेते हैं उन ड्रग्स की जो कि हमारे को विटामिनोसिस ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है, या फिर जहां हम इनको फ्रैक्चर्स या फिर जहां पर बोन का ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ानी हो वहां पर ये इन ड्रग्स को बहुत यूज़ करते हैं। एंड दीज ड्रग्स आर वेरी कॉमनली नोन एज व्हाट, बिसफॉस्फोनेट्स, ठीक है ना। तो बिसफॉस्फोनेट्स इज एब्रीवेटेड एज BPN, ठीक है, एंड दे आर नथिंग, दे आर द एनालॉग ऑफ द पायरोफॉस्फेट, ठीक है। केमिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि एक फॉस्फेट फिर ऑक्सीजन और फिर फॉस्फेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, पायरोफॉस्फेट स्केलेटन। अब व्हाट दे कैन डू, दे कैन इनहिबिट द बोन रिजॉर्प्शन, बिकॉज बोन रिजॉर्प्शन या फिर कैल्शियम का एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा था या थ्रू द किडनी और द इंटेस्टाइन, इसकी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ब्लड में तो बढ़ रहा था बट बोन्स में कम हो रहा था, और उसके लेवल को कम होने की वजह से हमको ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हमको ऑस्टियोलाइसिस देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन इनहिबिट द बोन रिजॉर्प्शन, यानी बोन को गलने से बचाएंगे ये, and have attracted considerable attention because of their ability to prevent the osteoporosis, ठीक है। So these are the magic drugs which are very commonly used to prevent as well as treat the osteoporosis, ठीक है। Now अगर हम बात कर लें तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन BPNs, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन है दे हैव अ वेरी लो पोटेंसी, the second generation have the mild potency, and the third generation which they have a very high potency for the treatment of osteoporosis. Now first generation is now obsolete, ठीक है ना, अब ये मार्केट में obsolete है, इसका यूज़ जो है बहुत कम होता है। The second generation and third generation is the choice for the orthopedician for treating the osteoporosis or the healing of the fracture, ठीक है, bone, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें तो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आती हैं दैट इज द इथियोड्रोनेट और टिलुड्रोनेट, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में अगर हम बात कर लें तो जो ड्रग है पेमिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट एंड एवेंड्रोनेट। थर्ड जनरेशन में बात कर लें तो रेजिड्रोनेट एंड जोलेंड्रोनेट जो हैं, दीज आर द ड्रग्स एंड दे हैव द हाइएस्ट पोटेंसी इन
होल क्लास, ठीक है ना। बीपीएन्स में सबसे ज़्यादा पोटेंट अगर हैं तो जोलेंड्रोनेट और रिसिड्रोनेट, और जोलेंड्रोनेट जो है ये सबसे ज़्यादा पोटेंट है। अगर इसमें भी आप पूछो तो सबसे ज़्यादा पोटेंट है। आप देखिए पोटेंसी जो है इट विल बी अराउंड 5000, और इसका मतलब है कि ये एक बड़ा इफेक्टिव वो है, ठीक है ना। नाउ एक स्टार मार्क है, टिलिंड्रोनेट इज नॉट मार्केटेड इन इंडिया, इथियोड्रोनेट इज ऑल्सो ऑब्सोलेट, इट इज नॉट यूज्ड, ठीक है, बहुत कम यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बिसफॉस्फेनेट, हाउ बिसफॉस्फेनेट एक्ट्स, ठीक है। तो जनरली बिसफॉस्फेनेट जो है इट हैज़ अ वेरी हायर एफिनिटी टुवर्ड्स द कैल्शियम फॉस्फेट एंड सेलेक्टिव एक्शन फॉर द कैल्सिफाइड टिश्यूज, ठीक है ना। अब what they can do on the surface of resorptive pits, the mineral phase is solubilized, ठीक, and solubilized to maintain the clear acidic zone created at the ruffled border of the osteoclast, यानी कि osteoclast के ऊपर जो एसिड के सिक्रीशन की वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो रहा था, बोन डिग्रेडेशन हो रहा था, ये वहाँ पर जाकर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बाइंड करके ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। फिर से समझ लेते हैं what they can do. BPN can bind with the calciphosphate as well as the calcified tissue, यानी जो कैल्शियम जहाँ से निकल गया उस टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं, कैल्सिफाइड टिश्यू, ठीक है ना। वहाँ पर ये जाकर रिजॉर्प्टिव जोन पे बाइंड करते हैं और बाइंड करके ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट जो थे वो क्या सिक्रेट कर रहे थे, एसिडिक जोन बना रहे थे, एसिड सिक्रेट कर रहे थे, और एसिड के सिक्रीशन की वजह से बोन, आप हड्डी को लो, एसिड में डाल दो, आप देखो कि थोड़ी देर बाद हड्डी जो है वो गल जाएगी, बिकॉज इट इज मेड ऑफ व्हाट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एसिड में डिग्रेड हो जाएगा आराम से, वो टूट के नीचे चूरा चूरा आपके डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम में, ठीक है ना, तो एसिड में डिग्रेड होने लग जाएगा, ठीक है। तो व्हाट बीपीएन कैन डू, बीपीएन कैन इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ विच इज़ रेगुलेटेड बाय द पीटीएच, ठीक है ना, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ब्लॉक हुई, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बंद होगा और कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे बॉडी में जो होगा वो क्या, बढ़ने लग जाएगा। इसके साथ साथ बीपीएन जो हैं दे आर ऑल्सो फेमस फॉर द एपोप्टोसिस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना कि एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। सेल ना दो तरीके से मरता है, एक तो सुसाइड कर लेगा, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं नेक्रोसिस, एंड नेक्रोसिस इज जनरली सीन इन द पेशेंट हु हैव द इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया टू द पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम सेल डेथ है जिसको हम एपोप्टोसिस बोल रहे हैं, ये बहुत प्लांट वे में होगा, धीरे धीरे श्रिंकेज होगा, उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स डिग्रेड होंगे, प्रोटियोलाइसिस होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो सिंक होकर और उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स डिसॉल्व हो जाएंगे एंड लेटर ऑन इट विल बी स्लव्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। लेकिन नेक्रोसिस जो है ये एक मतलब आप कह सकते हो अनप्रोग्राम सेल डेथ है जिसमें इस्चीमिया और हाइपोक्सिया होने लग जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, ठीक है। नाउ बैक टू द टॉपिक, सो बीपीएन हैज द आल्सो एबिलिटी टू स्टिमुलेट द एपोप्टोसिस ऑफ व्हाट, ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि जो ऑस्टियोक्लास्ट है उनको मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब उनको मारना शुरू कर देंगे, उनके नंबर को कम कर देंगे, तो जाहिर से बात है जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल कम हुआ, आपका ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी और आपका बोन जो है वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेगा, ठीक है। डिस्ट्रप्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो साइटोस्केलेटन था जो कि ऑस्टियोक्लास्टिक की वजह से बढ़ गया था, डिस्ट्रप्शन या डिग्रेडेशन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ द यू कैन से ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है ना। नाउ अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द क्लिनिशियंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, एंड अमंग देम एलेंड्रोनेट एंड जोलेंड्रोनेट, ये दो भाई है, कैसे हैं, ठीक है। एलेंड्रोनेट जो है वो शायद थर्ड जनरेशन का था और जोलेंड्रोनेट नहीं, सॉरी, एलेंड्रोनेट जो था वो सेकंड जनरेशन का था और जोलेंड्रोनेट जो है वो थर्ड जनरेशन का था, एंड दे हैव अ वेरी इफेक्टिव रोल ऑन द cholesterol pathway which is also known as mevalonate pathway, ठीक है। what they can do, ठीक है, they generally inhibit the prenylation of the certain GTP binding proteins which will lead to the you can say inhibition of the cytoskeleton ruffling, and this will lead to the degradation or inactivation of the osteoclast which will
इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और यू कैन से इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द बोन, ठीक है, बोन रीमॉडलिंग होने लग जाती है दोबारा से। इसको फिर से समझ लेते हैं। जनरली जो दूसरा पाथवे है, एक तो पाथवे हमने ये समझ लिया था कि वो उसके बीपीएन आया, ऑस्टियोक्लास्टिक सरफेस पे बाइंड किया, बाइंड करने के बाद उसने एपोप्टोसिस को बढ़ा दिया और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम कर दिया। एक तो तरीका ये था। दूसरा जो कि सिर्फ सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ही शो करता है इफेक्ट, उनमें मेलोवनेट पाथवे यानी जो कोलेस्ट्रॉल पाथवे है उसको ये क्या करता है, उसके ऊपर अपना इफेक्ट देता है। ये बेसिकली इनहिबिट कर देता है हमारे जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स को, जिसकी वजह से जो डिसरप्शन हो रहा था साइटोस्केलेटन का ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से, वो डिसरप्शन कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है या ओरल बायोअवेलेबिलिटी है दैट इज अराउंड 5%, ठीक है। यानी आप अगर एलेंड्रोनेट या फिर जोलेंड्रोनेट ले रहे हो तो जनरली इनका अवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी या ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर है, ठीक है। इसीलिए आपको जब भी ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो कहा जाता है कि खाली पेट लेना है और खाना खाने के आधा घंटे पहले लेना है और साथ में बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। वंस अगेन, if you are prescribed with the second generation or third generation BPNs, so they are taken in empty stomach before the meal, 30 minutes of the meal, ठीक है, and you need to consume plenty of water along with the सेकेंड और थर्ड जनरेशन बीपीएन, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। खाना, दवाई खाने के बाद आप लेटना नहीं है, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आप बैठना है, ठीक है, एरेक्ट रहना है, ठीक है, और आपको मतलब इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, अदरवाइज इसका जो एक्शन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। नाउ ओरल बीपीएन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द especially those patients who are suffering from peptic ulcer or GERD. GERD stands for gastroesophageal reflux disease, ठीक है। हाइपर एसिडिटी होती है ना कुछ लोगों को, बर्निंग होती है ओसोफेगस में, दैट इज व्हाट GERD। तो GERD के केस में और पेप्टिक अल्सर के केस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ बिल्कुल नहीं चलाया जाता है। वहाँ पर हम ओरल रूट की बजाय इंट्रावेनस रूट के थ्रू ड्रग को प्रिस्क्राइब मतलब एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो इजीली हो सकता है, ठीक है ना। नाउ what are the uses? So generally I told you that osteoporosis is the disease which is very effectively treated by the bisphosphonates. Second generation and third generation is very commonly what they can do, they can prevent as well as treat the postmenopausal osteoporosis in women as well as the age related or idiopathic osteoporosis. BPNs do not directly stimulate the bone formation. What they can do, they can made the calcitonin available as well as increase the calcium level in the bone, ठीक है ना। पैगेट्स डिजीज में भी इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी ये बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। वहाँ पर जो ऑस्टियोलाइसिस हो रहा था या बोन में जो पेन होता है उसको ये बहुत अच्छे से मतलब आप कह सकते हो कि कम कर देता है। हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी, मतलब अगर मैलिग्नेंसी की वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, कैंसर हुआ है किसी जगह पर, वहाँ पर कैल्शियम की, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा सेल्स होंगे तो उसको ज़्यादा कैल्शियम भी चाहिए होगा, तो हाइपर कैल्सीमिया अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी ये कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। तो हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव है। बोन मेटास्टेसिस अगर हुआ है तो वहाँ पर भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। दीज आर द रेफरेंसेज विच यू कैन रिफर फॉर योर एक्सटेंडेड स्टडी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू।